لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر 24 نیوز چینل کا لائسنس بحال کر دیا گیا۔ بحالی کی خبر سن کر روحی آفس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جشن کا سما تھا اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں بلال نیازی۔ حق سچ کی آواز اٹھانے کی سزا جب چینل 24 نیوز کو ملی تو ملک بھر کی طرح جنوبی پنجاب کے صحافیوں میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ گزشتہ روز دن بھر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا کی جانب سے کیے گئے فیصلے کو معطل کر دیا، جس پر روحی نیوز آفس میں جشن منایا گیا۔ پی ایف یو جے کے نائب صدر رانا پرویز حمید کا کہنا تھا کہ یہ حق سچ کی جیت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایک ایسا فیصلہ ہے جو یہ باور کرواتا ہے کہ اس ملک میں آئین کے تحت تمام ادارے کام کرتے رہیں گے اور ان کے تحفظ کے لیے بھی عدالتیں موجود ہیں۔ یہ لڑائی جو ہماری ہے یہ ذہن میں رہنا چاہیے، یہ ہماری آخری لڑائی نہیں ہے، یہ ہماری آخری فتح نہیں ہے۔ ہم نے آخری لڑائی تک، آخری فتح تک لڑتے رہنا ہے۔ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، سچ کہنے سے، حق کہنے سے، جو حقیقت ہے ہم نے لوگوں کو تک وہی پہنچانی ہے۔ اس موقع پر روحی آفس میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور خوشی کا اظہار کیا گیا۔ ایڈیٹر روحی نیوز جمشید رضوانی کا کہنا تھا کہ پیمرا نے یک طرفہ فیصلہ کیا، جس پر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے موقف کو سن کر پیمرا کا فیصلہ معطل کیا گیا۔ جو کل ملتان، جنوبی پنجاب، خاص طور پہ بہاولپور، رحیمیہ خان، ڈیرہ غازی خان اور خانے وال، مظفر گڑھ، لیا سے جو لوگ ملتان آئے اور انہوں نے ہمارے احتجاج میں شرکت کی، ان سب کا شکریہ۔ یہ کسی ایک امپلائی کا، ایک چینل کا مسئلہ نہیں تھا، ہزار خاندانوں کی دعائیں جڑی ہوئی تھی۔ وہ بے روزگار ہونے والے جو کہ ہم جیسے لوگ گزر بسر صحافت سے کرتے ہیں، تو ہم جیسے لوگوں کی، صحافیوں کی، بلکہ ان کے بچوں کی بھی دعائیں تھیں اور حق سچ کا فیصلہ ہوا۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ایک جو ہمارے صحافیوں پہ جو ایک بے روزگاری کی اور یہ جو مسائل تھے اس کی جو ایک تلوار لٹک رہی تھی، اس میں ہمیں جو حق اور انصاف کی جو ہے وہ فتح ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے نشریات بحالی کے فیصلے پر رپورٹرز گوہر رحمان، اقبال صادق، جنید انور اور دیگر صحافیوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے عہد کیا کہ آزادی صحافت کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ کیمرہ مین قرار حیدر کے ساتھ بلال نیازی، ملتان۔ عدالت کی جانب سے 24 نیوز کا لائسنس بحال ہونے پر ملتان ڈسٹرکٹ بار کے وکلاء برادری نے خوشی کا اظہار کیا۔ اسی حوالے سے ماہر عمران کی رپورٹ دیکھیے۔ 24 نیوز چینل کی بحالی پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان میں بھی وکلاء نے خوشی کا اظہار کیا اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ پیمرا نے آزادی صحافت پر حملہ کیا ہے۔ 24 نیوز چینل کو بند کر کے ہزاروں ورکرز کو بھی بے روزگار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ پابندی نہ صرف ٹی وی چینلز پہ کی تھی بلکہ یہ پابندی جمہوریت پہ تھی، یہ پابندی جو ہے وہ آئین پر تھی۔ میڈیا کے ساتھ دیا اور میڈیا نے بھی اس جتنے بھی موومنٹ چلی ہیں وکلاء کا ہمیشہ ساتھ دیا اور ہم ہمیشہ میڈیا کے ساتھ ہیں اور آزادی رائے کے ساتھ ہیں۔ میں روحی اور 24 کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز ہمیشہ بلند کی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اظہار رائے کی آزادی کو دبایا گیا حکومتی وہاں پر یا پیمرا میں، تو ہماری عدلیہ نے اس کا نوٹس لیا ہے اور اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے، جس پر آج ہم بہت خوش ہیں۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پیمرا کے آرڈر کو کالعدم قرار دینے کے حکم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں صحافی برادری کو جنہوں نے متحد ہو کر اس آمرانہ سوچ کا مقابلہ کیا۔ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور بالخصوص 24 اور روحی نیوز کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو اس پابندی کو ختم کیا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اور پی ایل ایف ہمیشہ ہی آزادی صحافت کی علمبردار رہی ہے۔ وکلاء کا کہنا تھا 24 نیوز چینل نے ہمیشہ غیر جانبدارانہ صحافت کی ہے اور عوام کی آواز کو ایوانوں تک پہنچایا ہے۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ ماہر عمران نواز، روحی، ملتان۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ کورٹ بہاولپور کے صدر سمیع لیاقت اور دیگر وکلاء نے 24 نیوز چینل کی بندش کے خاتمے کو خوشائند قرار دے دیا۔ کورٹ بار بہاولپور کے صدر سمیع لیاقت اور دیگر وکلاء نے 24 نیوز چینل کی بندش کے خاتمے کو خوشائند قرار دے دیا۔ صدر ڈسٹرکٹ کورٹ بار لیاقت سمیع نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہماری سبمیشن یہ ہے کہ آئندہ اس طرح کی جو ہے کسی بھی چینل سے متعلق جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ 24 چینل واقعی 24 تھا جو ایکٹیو تھا، اور یہ جو ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں یہ بہت قابل تحسین ہے
اور اس سے پہلے ہی پیمرا کو از خود جو ہے اس کو کھول دینا چاہیے۔ ڈسٹرکٹ بار کی خواتین وکلا نے روہی سے اظہار خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیمرا کی جانب سے بندش کا فیصلہ بھی قابل تنقید ہے۔ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے اکارڈنگ کیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ ہر ایک کا حق ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ہو، سب کو جو ہے وہ ایکول رائٹس ہیں کہ وہ اپنا جو ہے وہ جو بھی وہ فیل کرتے ہیں وہ ایکسپریس کر سکیں۔ ہائی کورٹ نے اس طرح کا یہ جو چینل 24 کی بندش کو ختم کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس کی بندش کو ختم کر دیا جائے، تو یہ ایک قابل تعریف جو ہے ان کا عمل ہے۔ 24 چینل کی بندش کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کالعدم قرار دیا جانا اور اس پر وکلا کی جانب سے خوشی کا اظہار اس بات کا گمازی ہے کہ چینل 24 عوام کی آواز بن چکا ہے۔ یہ چینل عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، 24 نیوز چینل کا لائسنس بحال، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی اور تاجر برادری نے خوشی کا اظہار کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر 24 نیوز چینل کا لائسنس بحال کرنے پر سیاسی اور کاروباری شخصیات نے خوشی کا اظہار کیا۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے پنجاب ندیم قریشی نے بتایا کہ 24 نیوز عوامی امنگوں کا ترجمان ہے۔ 24 نیوز کی بحالی پر صحافی دوستوں کو دلی مبارکباد پیش کی۔ 24 کی پوری ٹیم کو، مینجمنٹ کو اور تمام سٹاف کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ نے ایک بڑا اچھا ڈیسیجن کیا۔ آپ کو بتائیں ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب زاہد اختر زمان اور چیئرمین پی این ڈی حامد یعقوب شیخ کی ڈی جی خان آمد مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ رینوویشن کے بعد رجسٹری برانچ کا افتتاح کیا۔ بلوچ لیویز میں سلامی پیش کی گئی۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو 2 سال میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان سبتر۔ چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب زاہد اختر زمان نے ڈیرہ غازی خان کا دورہ کیا۔ چیئرمین پی این ڈی حامد یعقوب شیخ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈی سی طاہر فاروق اور ڈی پی او اختر فاروق نے استقبال کیا۔ کمشنر ساجد ظفر ڈار نے ترقیاتی کاموں بارے بریفنگ کی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے رینوویشن کے ڈی سی کمپلیکس میں موجود رجسٹری برانچ کا افتتاح کیا۔ اے ڈی سی آر سمیع اللہ فاروق اور ڈی سی طاہر فاروق نے بریفنگ کی۔ بلوچ لیویز لائنز میں بی ایم پی اور بلوچ لیویز کے چاکو چوبند دستے نے اسلامی پیش کی۔ کمانڈنٹ بی ایم پی حمزہ سالک نے ٹرائبل ایریا فورس سے متعلق بریفنگ دیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ کے کنسٹرکشن سائٹ کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈیرہ غازی خان کے لیے تاریخی بڑا پیکج دیا ہے۔ چیئرمین صاحب نے آج پورا ریویو کیا ہے، جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی فنڈ والی وہ انہوں نے ہم سے کمٹ کی ہیں، اور ڈیرہ غازی خان والوں کے لیے گڈ نیوز ہے کہ بڑے عرصے بعد حکومت میں اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے ڈی جی خان میں، اور یہ پورے علاقے کے لیے انشاءاللہ ٹرن اراؤنڈ کرے گا۔ چیئرمین پی این ڈی حامد یعقوب نے منصوبوں کی تکمیل کے لیے تمام ضروری فنڈز کی یقین دہانی کرائی۔ ان کا کہنا تھا کہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی تکمیل 2 سال کی مقررہ مدت میں یقینی بنائی جائے گی۔ جنوبی پنجاب کے منصوبے کے لیے فنڈز کی کوئی کمی نہیں۔ 2 سال میں انشاءاللہ اپریل 2022 میں یہ پروجیکٹ تیار دینا ہے۔ اس کے لیے جو بھی فنڈز اس کو درکار ہوں گے، یہ پروجیکٹ جو ہے 4.2 ارب کا ہے، ہم انشاءاللہ جو بھی ان کو فنڈ درکار جب بھی ہوں گے وہ ہم مہیا کریں گے، اس کی ہم انشور کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے پل ڈاٹ اور چوک چوہٹا کا بھی دورہ کیا اور منصوبوں کا جائزہ لیا۔ کیمرامین عبدالقادر کے ہمراہ ذیشان صفدر، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں عید الاضحیٰ کے موقع پر ملتان میں عارضی بکر منڈیاں لگانے کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے 24 گھنٹوں کے دوران عارضی بکر منڈیوں کے مقامات کی تعین کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کمشنر ملتان عامر خٹک کی زیر صدارت انتظامات کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد طیب خان، قمرالزمان کیسرانی، سی او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عبداللطیف خان، اسسٹنٹ کمشنرز عابدہ فرید، شہزاد محبوب، احمد رضا، غلام سرور، محمد زبیر، سی او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک، چیف آفیسرز اقبال فرید اور اقبال خان نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے عارضی بکر منڈیاں شہری حدود سے باہر لگانے کی ہدایت کی، جبکہ شہری حدود میں آنے کی وجہ سے سامورانہ میں لگنے والی مستقل بکر منڈی بند کرنے کا حکم دے دیا۔ جو آبادی ہے اس سے ہم نے دور اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس حوالے سے پچھلے سال جتنی ہم نے سیل پوائنٹس اسٹیبلش کی تھی اس کو ہم نے بڑھا دیا ہے۔ آج میں نے اسی سے بھی کہہ دیا ہے، سی او سے بھی، باقی جتنے آفیسرز کنسرن ہیں کہ آج وزٹ کریں، اس کو فائنل کریں، اور جو میٹروپولیٹن کی ہماری حدود ہے اس سے باہر ہم اس کو اسٹیبلش کریں گے۔
डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक का कहना है कि कोरोना वायरस फैलने का खदशे के पेश नज़र कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। तमाम बकर मंडियां 2.5 किलोमीटर से जायद फासले पर शहर से बाहर लगाई जाएंगी। शुजाबाद और जलालपुर के ईसीज हैं, उनको भी मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है। लास्ट ईयर उनके एक सेल पॉइंट लगा हुआ था, उनको भी अगर ज़रूरत हुई वो बढ़ाना चाहते हैं तो वो नंबर भी बढ़ा सकते हैं और इनको रीलोकेट भी हमने करना है। और जो इस्टेब्लिश करेंगे हम इसको, उसमें गवर्नमेंट की SOPs को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। उस हवाले से आमिर खट्टक ने कहा कि रश कम करने के लिए गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बकर मंडियों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। बकर मंडियों को जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि जो वहाँ पे कारोबार होता है उसमें डेफिनेटली पे कंप्लेंट्स आती है सिक्योरिटी के हवाले से, स्पेशली नाइट में जब ट्रैवलिंग होती है और जो बिजनेस एक्टिविटी वहाँ पे होती है तो उसको सिक्योरिटी देना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में भी म्यूनसिपल कमेटी की हदूद से बाहर बकर मंडियां लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि जानवर को लाने वाली गाड़ियां शहर में दाखिले से पहले डिसइंफेक्शन की जाएंगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, रोही, मुल्तान। ईद उल अजहा की आमद खानेवाल में आर्जी मवेशी मंडियों के क़याम के लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी कहते हैं शहर से 2 किलोमीटर दूर पर सब्जी मंडियां कायम की जाएंगी। कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें ईद उल अजहा के मौके पर मवेशी मंडियों के कयाम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ईद उल अजहा पर आर्जी मवेशी मंडियों के कयाम के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महकमा लोकल गवर्नमेंट से साइट्स प्लान तलब कर लिया गया। शहरी इलाकों में जानवरों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत की कि वो आर्जी मवेशी मंडियों में SOPs के मुताबिक इंतजाम करें। मंडियों में लाइट्स, वॉशरूम, सफाई और पानी के बेहतरीन इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मवेशी मंडियों में दाखिली और खारजी गेट अलग-अलग रखे जाएं, जबकि महकमा सेहत आर्जी मवेशी मंडियों में कोरोना के हवाले से कैंप्स लगाए और महकमा लाइव स्टॉक जिला के दाखिली रास्तों पर चेक पोस्ट कायम करे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महकमा सेहत की तरफ से डेंगू सर्वेलेंस के दौरान मॉल ऑफ कैंट से डेंगू लार्वा बरामद। प्लाजा के मुख्तलिफ मकामात से मिलने वाले डेंगू लार्वा को तल्फ कर दिया गया। प्लाजा मालिकान को नोटिस जारी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने रोही चोलिस्तान के बेजबान मवेशियों की अद्वियात और वैक्सीन के लिए मौजूद 47 मिलियन रुपए वापस ले लिए हैं, जिसके बायस रोही चोलिस्तान के मवेशियों की वैक्सीनेशन खतरे में पड़ गई है। फंड की रकम वापस होने पर अद्वियात फराहम करने वाली कंपनियों की अदायगियां भी रोक दी गयी। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता साल डायरेक्टोरेट ऑफ लाइव स्टॉक चोलिस्तान को अद्वियात, वैक्सीन, गाड़ियों के फ्यूल और मरम्मत समेत दीगर मामलात के लिए 153.276 मिलियन रुपए के फंड फराहम किए गए। गुज़िश्ता साल की निस्बत अद्वियात और वैक्सीन के लिए अदायगियां भी रुक गईं। रोही चोलिस्तान में 15 लाख से ज्यादा छोटे बड़े मवेशी मौजूद हैं, जिन्हें मुख्तलिफ औकात में वैक्सीन की जाती है। खबरनामे में दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, मुल्तान में बड़े सरकारी इदारे भी मैप्को के डिफॉल्टर निकले। वासा, जेल और जिलाई हुकूमत करोड़ों रुपए के नादहिंदा हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इकबाल सादिक। सरकारी इदारे बगैर बिल अदा किए बिजली इस्तेमाल करने के आदी बन गए। जिलाई हुकूमत समेत दीगर इदारे भी मैप्को के डिफॉल्टर निकले। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मुल्तान मियां मोहम्मद अनवर ने बताया कि वासा 33 करोड़ रुपए का नादहिंदा है, जबकि जेल 4 करोड़ 10 लाख का डिफॉल्टर है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट 10 करोड़ रुपए की नादहिंदा निकली। एक हमारा जेल है जी, जेल से हमने लेना था 41 मिलियन, उनकी पेमेंट नहीं आई, पिछले 3 माह से पेमेंट नहीं आई। इसके अलावा वासा हमारा मेजर है डिफॉल्टर, लेकिन वासा ने पिछले महीने 30 मिलियन पेमेंट कर दी है और बाकी जो है वो कह रहे थे हम जुलाई में कर देंगे पेमेंट, बाकी रहती है उनकी 330 मिलियन। दूसरी जानिब सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मियां मोहम्मद अनवर ने बताया कि आलमी वबा कोरोना के बायस मुश्किल तरीन सूरत हाल में भी महकमा प्राइवेट सार्फिन से 104% रिकवरी हासिल करने में कामयाब रहा। बावजूद इसके कि कोरोना है, हमारा स्टाफ भी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमारे स्टाफ ने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने मैक्सिमम पेमेंट करवाई है। मियां मोहम्मद अनवर का कहना था कि डिफॉल्टर सरकारी इदारों ने जुलाई के आखिर तक अपने वाजपात क्लियर करने की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन करार हैदर के साथ इकबाल सादिक, रोही, मुल्तान। भक्कर में गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, शहरी परेशान। कहते हैं कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी मुश्किल बना दी है। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह बक्कर भी शदीद गर्मी की लपेट में है। सुबह सवेरे ही दरजा हरारत 35 सेंटीग्रेड से तजावुज कर जाता है। गर्मी के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग ने भी रही सही कसर पूरी कर दी है। देही इलाकों में कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से लोड शेडिंग के खात्मे के लिए बुलंदो बांग दावे महज दावे साबित हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से हफ्ते में 2 छुट्टियां हो रही हैं, जिसकी वजह से कारोबार बहुत मुतासिर हो रहा है। दूसरी रही सही कसर हुकूमत पूरी कर रही है, जो बिजली गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रही है, जिसकी वजह से
कारोबार ठप है। लोगों की जो डिमांड होती है उस पर हम पूरा नहीं उतर सकते। शहरी इलाकों में 10 घंटे जबकि देही इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद लोड शेडिंग ने कारोबार को तबाह कर दिया है। 2 घंटे होती है, 1 घंटा नहीं होती, उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। कारोबारी तबके का कहना है कि हुकूमत फिलफौर लोड शेडिंग का हल निकाले ताकि कारोबार चल सके। दूसरी जानिब रेलवे स्टेशन बहावलपुर पर मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा। बहावलपुर में ट्रेनों के स्टॉप कम करने के बाद ओपन टिकट खत्म करने की पॉलिसी ने मुसाफिरों को मुश्किलात से दो चार कर रखा है। रेलवे स्टेशन बहावलपुर पर ओपन टिकट बंद करने से मुसाफिरों की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ओपन टिकट बंद होने के बाद रिजर्वेशन टिकट हासिल करने वाले मुसाफिरों की लाइनें लग गईं। मुसाफिरों का कहना है कि 1 माह से जायद के अरसे से ओपन टिकट्स बंद की गई थी, जो ताहाल बहाल न हो सकी। उन्होंने कहा कि ट्रेनों के स्टॉप खत्म करने और ओपन टिकट बंद करना मुसाफिरों के साथ ज्यादती है। बहावलपुर में तमाम ट्रेनों का जो स्टॉप था, अब उन्होंने सिर्फ 5 ट्रेनों का कर दिया, जो अवाम के साथ ज्यादती है, बहावलपुर की अवाम के साथ। ओपन टिकट बिल्कुल बंद है, वो बिल्कुल नहीं दे रहे। कह रहे हैं कि मोबाइल पे आप डाउनलोड करें और उन्हें करें, जिन्हें नहीं आता वो क्या करें। मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर ओपन टिकट के निज़ाम को बहाल करे और इनकी मुश्किलात कम करने के लिए इकदाम किए जाएं। आपको बताएं, MNA चौधरी जावेद इकबाल बड़ाइच और MPA चौधरी आसिफ मजीद अवामी खिदमत में पेश रहीम यार खान की शाह फैसल कॉलोनी में नई सड़क का इफ्तिताह कर दिया। रहीम यार खान की शाह फैसल कॉलोनी में MNA चौधरी जावेद इकबाल बड़ाइच और MPA चौधरी आसिफ मजीद ने नए रोड का इफ्तिताह कर दिया। उनकी आमद पर इलाका मकीनों ने फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। इस मौके पर MPA चौधरी आसिफ मजीद का कहना था कि 2 करोड़ की लागत से रोड तामीर किया गया। अवामी मसाइल का हल करना ही PTI का मंशूर है। हमने 1 करोड़ रुपया अभी सड़क को दिया है और 1 करोड़ रुपया सीवरेज का काम। ये मनसूबा 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ अल्लाह के फजल से, और इस इलाके में हमने कुछ 2.5 करोड़ रुपए की लागत से 45 गलियों को टफ टाइल लगाई है। MNA चौधरी जावेद इकबाल बड़ाइच का कहना था कि हल्के के मसाइल हल करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जल्द सेहतयाबी के लिए लेबर विंग तहरीक इंसाफ की जानिब से दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मजदूर तबके में खाना भी तकसीम किया गया। ख्वाजा शाह महमूद कुरैशी कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए अजीज होटल चौक पर तहरीक इंसाफ लेबर विंग की जानिब से दुआई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रहनुमा लेबर विंग ईसा भुट्टा का कहना था कि मजदूर तबका शाह महमूद कुरैशी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। शाह महमूद कुरैशी के लिए इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको शफा दे। ये सब तबका इकट्ठा हुआ है, पूरा अहले इलाका इकट्ठा हुआ है। ये रक्षा यूनियन वाले मजदूर तबका लोग हैं, वो भी इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला शाह महमूद कुरैशी को सेहत दे। इस मौके पर सज्जाद हमीद का कहना था कि वजीर खारजा मुल्तान शहर का फखर हैं, उनकी सेहत बारे फिक्रमंद हैं। दुआ है वो जल्द सेहत याब होकर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें। ये तमाम मजदूर सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं कि शाह महमूद कुरैशी को अल्लाह ताला जल्द सेहत याब करे, ताकि वो बैनुल अक़वामी और अपने मुल्क और अपने हल्के के हवाले से उनके मामलात हल कर सके। इस मौके पर तहरीक इंसाफ लेबर विंग की जानिब से गरीब व मजदूर तबके में खाना भी तकसीम किया गया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की ज़ेर सदारत तमाम डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी के जायजा बारे इजलास हुआ। कमिश्नर्स ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को महंगाई कंट्रोल और ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए। मुल्तान शानुल हक को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि डिवीजन भर में एक रोज में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 2118 छापे मारे हैं। गिराव फरोशों, जखीरा अंदोजों को 1 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। माह जुलाई में अब तक 13,000 से जायद छापे, 7,56,100 रुपए जुर्माना किया जा चुका है। गिराव फरोशों के खिलाफ 2 FIR जबकि 2 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। डिवीजन भर में एक रोज में 70 रुपए फी किलो के हिसाब से 4,69,700 रुपए की 6,710 किलो चीनी फरोख्त की गई है। टाइगर फोर्स बारे ब्रीफिंग देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर जनरल ख्वाजा उमैर महमूद ने बताया कि डिवीजन भर में 80,721 टाइगर फोर्स के जवान रजिस्टर्ड हैं। पहली कॉल रिस्पांस पर 28,000 से ज्यादा जवानों को मुख्तलिफ शोबों में टास्क दिया गया। 4 अजला में टाइगर फोर्स की कमेटियां तश्कील दी जा चुकी हैं। इजलास में आम आदमी तक फोर्स की अहमियत उजागर करने बारे मीडिया मुहिम शुरू करने पर भी गौर किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान, वीडियो लिंक पर डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। पंजाब हुकूमत ने रोही चोलिस्तान के मवेशियों को भी न छोड़ा। डायरेक्टोरेट ऑफ लाइव स्टॉक चोलिस्तान से मवेशियों की अद्वियात की मद में रखे 47 मिलियन रुपए वापस ले लिए गए।
पंजाब हुकूमत ने रोही चोलिस्तान के बेजबान मवेशियों की अद्वियात और वैक्सीन के लिए मौजूद 47 मिलियन रुपए वापस ले लिए हैं, जिसके बायस रोही चोलिस्तान के मवेशियों की वैक्सीनेशन खतरे में पड़ गई है। फंड की रकम वापस होने पर अद्वियात फराहम करने वाली कंपनियों की अदायगियां भी रोक दी गयी। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता साल डायरेक्टोरेट ऑफ लाइफ स्टॉक चोलिस्तान को अद्वियात, वैक्सीन, गाड़ियों के फ्यूल और मरम्मत समेत दीगर मामलात के लिए 153.276 मिलियन रुपए के फंड फराहम किए गए। गुज़िश्ता साल की निस्बत अद्वियात और वैक्सीन के लिए अदायगियां भी रुक गयीं। रोही चोलिस्तान में 15 लाख से ज्यादा छोटे बड़े मवेशी मौजूद हैं, जिन्हें मुख्तलिफ औकात में वैक्सीन की जाती है। बहावलपुर में कपास की फसल पर टींडे लगने का अमल जारी है। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि जो फल लग चुका है उसकी हिफाजत सबसे अहम है। बहावलपुर डिवीजन में 18 लाख एकड़ पर कपास की काश्त की गई। अगीती काश्त वाली फसल पर टींडे लगने का अमल जारी है, जबकि पछीती काश्त वाली फसल पर फूल लगना शुरू हो गए हैं। ज़राई माहिरीन का कहना है कि इस वक्त फसल पर गुलाबी सुंडी और रस चूसने वाले कीड़ों का हमला रिपोर्ट हुआ है। इस वक्त कपास, बढ़ोतरी और फल लेने दोनों मराहल साथ साथ गुजर रही है। तो अभी तक अगर हम कपास की फसल देखें तो कपास की ओवरऑल कंडीशन हमारी सेटिस्फैक्ट्री है। तो इस वक्त हमें पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम जो भी हमारी फसल पे फल आए, गुड्डी आए, उसको हम बचा पाएं और उसको टींडा और उसमें से फुट्टी ले पाएं। ज़राई माहिरीन का कहना है कि गुलाबी सुंडी टींडे और फूल में घुसकर खुद को अंदर बंद कर लेती है और टींडे को अंदर नुकसान पहुंचाती है। कपास की फसल पर इस वक्त तक स्प्रे ना करें जब तक कोई बीमारी माशी नुकसान की हद तक ना पहुंच जाए। काश्तकार देखा देखी अंधाधुंध स्प्रे ना करें, इससे फसल पर मनफी असरात मुरतब होंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अथर लाशारी, बहावलपुर। रहीम यार खान में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत इकरार हुसैन कहते हैं कि कपास की फसल पर सफेद मक्खी का हमला काबिले कंट्रोल है। रहीम यार खान में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत इकरार हुसैन ने बताया कि जिला में 5,39,000 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की गई, जिस पर सफेद मक्खी का हमला शुरू हो गया। फी एकड़ पैदावार मुतासिर हो सकती है। टिड्डी दल के हमलों से 88 एकड़ कपास मुतासिर हुई। जिला रहीम यार खान में 5,39,000 एकड़ पे कपास काश्त हुई है। जिला रहीम यार खां कपास काश्त के हवाले से बहुत अहम है। वाइट फ्लाई हो गई, जेसड हो गया, इसी तरह थ्रिप्स हो गई। तो अगर वो ईटीएल पे आते हैं तो ज़िम्मेदार को गाइड करते हैं कि स्प्रे शुरू किया जाए। अगर ईटीएल पे नहीं आते तो उसको बताया जाता है कि आपने स्प्रे नहीं करनी। इकरार हुसैन का कहना था कि किसान अगर ज़राई माहिरीन के मुशावरत से बर वक्त स्प्रे करें तो सफेद मक्खी का तदराक यकीनी बनाया जा सकता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। बहावल विक्टोरिया अस्पताल और कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलोनी में चोरी की वारदातों के बाद कॉलेज इंतजामिया मुतहरिक हो गई। सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज, बहावल विक्टोरिया अस्पताल और मेडिकल कॉलोनी में चोरी की मुख्तलिफ वारदातें हुई। अब कॉलेज इंतजामिया ने सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। तर्जुमान कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सालिह चीमा का कहना था कि सिक्योरिटी कंपनी पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। अब सीसीटीवी कैमरों की तादाद बढ़ाई जा रही है। वहाँ पे सिक्योरिटी कैमराज जो है ना वो इन्हांस किए हैं और हमने नाइट विजन कैमराज जो हैं उसकी तरफ हम गए हैं। उनकी हमारा परचेज का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया हुआ है और इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू डेज, आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह वो इंस्टॉलेशन जो नाइट विजन कैमराज की है वो इंशाल्लाह। डॉक्टर सालिह चीमा ने मजीद कहा कि कॉलेज और अस्पताल के रास्ते दही इलाकों से मलहका हैं, जिन्हें दीवारों के जरिए महफूज बनाया जा रहा है। हमारे जो स्पोर्ट कम्प्लेक्स है उसके अंदर आउटसाइडर्स का बहुत अमल दखल था, तो उसको हमने टोटली जो है उसको कर्ब किया है और वहाँ पे हमने रेजर वायर और उसके जो दीवारें हैं उसको हमने जो है ना राइज कर रहे हैं। अहम मुकामात पर सिक्योरिटी कैमरे न होने की वजह से गाड़ियों के शीशे टूटे और चोरी की भी कई वारदातें हुई। अस्पताल की सिक्योरिटी कंपनी ने मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अतर शारी, बहावलपुर। खबरनामे में दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, आरपीओ बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरेशक की स्पेशल एलीट ग्रुप और डिस्ट्रिक्ट एलीट ग्रुप के इंचार्जेस से मीटिंग। आरपीओ का कहना था कि एलीट फोर्स सूबे का फख्र है, एलीट फोर्स की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। आरपीओ बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरेशक ने स्पेशल एलीट ग्रुप और डिस्ट्रिक्ट एलीट ग्रुप के इंचार्जेस से मीटिंग की, जिसमें नफरी की कारकर्दगी, असलहा और व्हीकल्स के हवाले से आरपीओ को ब्रीफिंग दी गई। मीटिंग के दौरान आरपीओ जुबैर दरेशक का कहना था कि एलीट फोर्स पंजाब पुलिस का इंतहाई अहम हिस्सा है। दौर हाजिर के तकाजों के मुताबिक एलीट फोर्स को जदीद असलहे से लैस किया गया है। सीपीओ मुल्तान ने कोरोना सूरत हाल में करंतना ड्यूटी सरअंजाम देने वाले फ्रंट लाइन पुलिस जवानों की हौसला अफजाई की है। तकरीब का इनेकाद भी किया गया। जवानों में कोरोना रिलीफ फंड्स की मद में चेक तकसीम किए गए।
हाल में फ्रंट लाइन पर करंटीना ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई के लिए पुलिस लाइन में तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन खान रजा की सरबराही में की गई। एसपी हेडक्वार्टर जुनैरा असफर, डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद इकबाल लशारी और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर शबाना सैफ सीपीओ मुल्तान के हमरा थे। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एलिट फोर्स और पंजाब कांस्टेबली के करंटीना ड्यूटी सर अंजाम देने वाले 247 जवानों ने शिरकत की। आज हमने कैश अवार्ड सेरेमनी का इनकाद किया था यहाँ पे, और इसमें हमने अपने जवानों को माली इमदाद, कैश रिवॉर्ड दिया है। माली इमदाद इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, जिन्होंने कोरोना के अंदर बहुत बहादुरी के साथ और जाँ फिशानी के साथ और बड़े जज्बे के साथ ड्यूटी दी है, ये उसका इतराफ़ है। सीपीओ ने करंटीना ड्यूटी सर अंजाम देने वाले तमाम जवानों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि जवानों ने कोरोना जैसी मुश्किल सूरत हाल में बगैर किसी हिचकिचाहट के मेहनत, जाँ फिशानी और जज्बे से ड्यूटी सर अंजाम दी। ये हमें आईजी साहब ने स्पेशल ग्रांट दी थी कि जिन लोगों ने इस कौम की खिदमत की है कोरोना के टाइम्स में, और ख़ास तौर पे इनर सर्कल्स में ड्यूटी दी है। सीपीओ ने जवानों को हिदायत की कि आइंदा भी इसी तरह मेहनत और जज्बे से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। ड्यूटी करने वाले तमाम पुलिस अफसरान में उनकी हौसला अफजाई के लिए 10 लाख रुपए से जायद कैश अवार्ड भी तकसीम किए गए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, जिला बिहाड़ी के लिए बड़ा एजाज डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हाजी जफरुल्लाह चौधरी पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर मुंतखब हो गए। नेशनल हॉकी स्टेडियम में पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन के इंतखाबात हुए। मुश्ताक भट्ट सदर, हाजी जफरुल्लाह चौधरी सीनियर नायब सदर पंजाब मुंतखब हो गए। हाजी जफरुल्लाह चौधरी का बिहाड़ी पहुंचने शानदार इस्तकबाल किया गया। ताइक्वांडो के ऑफिशियल्स, कोचेज और खिलाड़ियों की कसीर तादाद ने सीनियर नायब सदर पंजाब हाजी जफरुल्लाह चौधरी पर फूलों की पत्तियां निछावर की और माला भी पहनाई। बड़ी खुशी की बात है, और आज जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, मेरे ये वालिदैन की दुआओं और मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद सैन मेरे साथ खड़े हैं। इनकी मेहनत से ये सब कुछ मुझे आज मिला है। दोनों मेरे शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब का सीनियर नायब सदर होना बहुत खुशी की बात है। ये हमारे बिहाड़ी के लिए एक एजाज है। जनूबी पंजाब के पसमानदा जिला बिहाड़ी से पंजाब का सीनियर नायब सदर मुंतखब होना हाजी जफरुल्लाह के लिए किसी एजाज से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले, मोहम्मद, रोही, बिहाड़ी। अल-खिदमत फाउंडेशन लैया के ऑर्फन केयर प्रोग्राम के तहत यतीम बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। ईद की खुशियों को दुबारा करने के लिए अल-खिदमत फाउंडेशन लैया के ऑर्फन केयर प्रोग्राम के तहत 117 बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। दफ्तर जमात इस्लामी में मुनक्किदा तकरीब में पैट्रन इन चीफ अल-खिदमत फाउंडेशन जनूबी पंजाब राउफ जफर, नायब अमीर जमात इस्लामी चौधरी असगर अली गुजर, जिलाई सदर अल-खिदमत फाउंडेशन रिजवान खान, डॉक्टर जफर आलिम जफरी और दीगर रहनुमाओं ने यतीम बच्चों में ईदी तहाइफ और खाने की अशिया तकसीम की। राव मोहम्मद जफर का कहना था कि ईद गिफ्ट मिलने पर यतीम बच्चों के चेहरों पर खुशी दीदनी थी। इस तकरीब के इनाकाद करने पर अल-खिदमत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के अंदर 117 बच्चे जो हैं हमारे किफ़ालत यतीम प्रोग्राम के, उनको ईद के तहफ़ दिए गए हैं और ईदी दी गई है। नायब अमीर जमात इस्लामी चौधरी असगर अली गुजर का कहना था कि यतीम बच्चों की कफालत करने पर अल-खिदमत फाउंडेशन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आज इन बच्चियों को देखकर, इन बच्चों को देखकर हम दिल से खुश हैं कि ये नन्हे बने बच्चे जिनके जो